passed your fifth, and now you are in the sixth semester. Am I audible to you? Class, am I audible? Yeah, so connection is active. So we are not in a need of much introduction, as I have dealt your last semester subject, that is strategic management, and this time we are going to deal with the entrepreneur, or you can say the entrepreneur, or even you can say the entrepreneur. It depends on the pronunciation, that Indian pronunciation, British and American, and maybe in certain cases the European pronunciation. Now, the point is, why this subject is there in your syllabus in semester 6. Do you guys have any idea that what exactly the entrepreneur means? कुछ भी आपको आइडिया हो, feel free. What is an entrepreneurship? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. आप काफ़ी कम लोग हैं, तो जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, तो अगर आपको थोड़ा वो फील चाहिए फेस टू फेस का, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर वीडियो. आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू कीप इट ऑफ, इट्स completely योर चॉइस. बट from this I would like to turn on my video so that we can have a good interaction, and that matters a lot. As far as the subject need is concerned, we need to be interactive, and the face to face recognition will help you to be more interactive. And yes, the most important, I forgot actually, please be online. Yeah. This is our Takia Kalam, you can say like that. Is it visible? The disclaimer, the most important aspect, disclaimer as far as the online session is concerned. Yes, sir. So, yeah, thank you. So, before we move forward, let me share the disclaimer with you. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights, and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. So this is our disclaimer that we need to read before we start our session as far as the entire semester is concerned. So now it's time to stop this. Okay, now let's have one-to-one interaction. Do you have any idea what exactly entrepreneur means for? क्या है भाई ये entrepreneur क्या है, and क्यों जरूरी है? जॉब से काफी खुश है भाई हम. वी आर अर्निंग गुड फ्रॉम आवर जॉब, हमारा ब्रेड एंड बटर चल जाते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन हो जाती है, घर के खर्चे निकल जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी कुछ वो हो जाता है. Discuss what
एंटरप्रेन्योर इज? यस, आप लोग आंसर दे सकते हैं, जो भी हो आप आंसर दीजिए। अनम्यूट योर सेल्फ, अब चैट बॉक्स की जरूरत नहीं है, वी आर वेरी लिमिटेड इन नंबर, सो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आंसर, फील फ्री। सर एंटरप्रेन्योर में वो मनी अर्न रनिंग बिजनेस होता है, वो रनिंग करके उसको मनी अर्न करता है। ओके, अपना बिजनेस रन करके मनी अर्न करते हैं। ओके, गुड हैदर। देन अंकिता हैज रिप्लाइड दैट द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, rightly said, the adrenaline, or you can say the main person who runs the business, or you can say the who initiated, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे कि धीरू भाई अंबानी थे, उसने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन, उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन जो है, अब उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिजनेस चलाएगी। गुड। Krisha has answered, entrepreneur is a person who set up business and take financial risk. The most important. रिस्क है तो इश्क है, मैं नहीं बोला, ऐसा किसी ने बोला था स्कैम 1992 में, बट यस, रिस्क most important aspect. When you are taking risk, you deserve something. It may be reward, it may be monetary, it may be a certain sort of perks and something like that. But yes, when you are taking risk, you deserve something in return. रिवॉर्ड हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, नेम एंड फेम हो सकता है, काफी सारी चीजें हो सकती है। बट यस, नाउ परेश जी, परेश भानुशाली, आप हो वहां पे? परेश जी, थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है एंटरप्रेन्योर? आर यू देयर परेश? जो आंसर नहीं देगा दिस टाइम आई एम गोइंग टू रिमूव देम, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस देखे, बच्चे ऑनलाइन रह के मतलब ये मोबाइल में स्टार्ट करके फिर अपना काम करने लगते हैं। बट द सब्जेक्ट इज नॉट लाइक दैट कि जहाँ पे आप ये कर सको। सो दिस विल बी द ट्रूली इंटरेक्टिव सेशन। परेश, आर यू देयर? अदरवाइज आई एम गोइंग टू मार्क यू एब्सेंट। दिस इज फाइनल कॉल फॉर द परेश। नेटवर्क का इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली अवेलेबल हो। दिस इज फाइनल कॉल फॉर द परेश। परेश, आर यू देयर? ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू रिमूव परेश। ओके, सो परेश भाई साहब को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि दोज हु आर नॉट अटेंटिव, इट्स ऑफ नो यूज। Dhruva has answered that the entrepreneur means making money by starting and running the business. Yes, rightly said. Profit makes a lots of difference. पैसे आने चाहिए। ताल मूवी में अगर आपने देखा होगा, काफी पुरानी मूवी है बट फिर भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें अनिल कपूर ने कुछ डायलॉग्स ऐसे बताए थे, जैसे कि पहले वो अपने मम्मी के सिद्धांतों पे चल रहे थे जिसमें पैसे नहीं आ रहे थे, फिर उसके बाद उसके मामा के कुछ सिद्धांत थे उसके ऊपर चले, और एक ही प्राइम इंटेंशन था कि बस लक्ष्मी आनी चाहिए, छननन छननन, पैसे आने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योर इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज वो ये एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, जो किसी और ने नहीं लिया, वो उसने लिया है। He has taken a big risk, and that's why he is expecting some sort of return. Nothing wrong in that. And वो रिटर्न जो है वो प्रॉफिट है, फिनेंशियल प्रॉफिट है, नेम है, सोसाइटी में फेम है, इट कैन बी एनीथिंग, बट यस, प्रॉफिट इज मस्ट। प्रॉफिट इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का कोई फायदा नहीं, आप उसको बंद कर दो। हम गौशाला नहीं चला रहे, हम एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जो है वो चला रहे हैं, जहाँ पे हमने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं,
जहां पे हमने काफी बड़ा रिस्क लिया है, एंड वो रिस्क लेने के बाद डेफिनेटली हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा बेसिक राइट है, जो हम डिजर्व करते हैं. सो द एंटरप्रेन्योर इज द वन हु टेक्स द रिस्क. यहाँ पे रिस्क मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई एरा गेरा नत्थु खेरा रिस्क नहीं लेगा. सो द वन हु टेक द रिस्क, द वन हु इन्वेस्ट maybe 10 rupees, maybe 20 rupees or something like that, but it's all about the taking risk and investment. पानीपुरी का ठेला वाला है, वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है. भले उसने 500 रुपए में अपना पानीपुरी का ठेला स्टार्ट किया, बट इवन दो उसने रिस्क तो लिया है ना, बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लिया है. दैट्स वाई वो भी एक एंटरप्रेन्योर है. फिर चाहे वो पानीपुरी का ठेला वाला हो, चाहे दूसरा कोई भी हो, चाहे वो रास्ते पे बैठा हुआ कोबलर हो, या फिर दूसरा कोई भी हो. सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, द वन हु टेक्स द रिस्क, द वन हु इन्वेस्ट, अ सिंगल पाई भी हो सकती है. सो जहां पे इन्वेस्टमेंट है, जहां पे रिस्क लेके बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, उसको आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो. जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, आप उसको एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो. जो 2 लोगों को, जो 4 लोगों को, जो हजारों लोगों को, जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, आप उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो. आर यू गेटिंग द थिंग्स? यस सर. या थैंक यू. सो जो बंदा रिस्क लेता है, डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट करता है, अमाउंट उसमें एक इन्वेस्ट करता है, लाखों करोड़ों रुपए भी हो सकते हैं, छोटी अमाउंट भी हो सकती है, बट द वन हु इज हिज ओन बॉस, जो खुद का बॉस है, जिसका कोई बॉस नहीं है, वो खुद ही अपना बॉस है, आप उसे एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो. बट नाउ अ $1 billion क्वेश्चन इज दैट व्हाई? भाई क्यों रिस्क लेना है? अच्छी खासी जॉब चल रही है, क्यों रिस्क लेना है? कोविड आपने नहीं देखा, बिजनेस बंद हो गए थे, जीरो इनकम थी, अर्निंग के सोर्सेस नहीं थे, ऊपर से फिक्स एक्सपेंसेस तो चालू ही थे. जिसका बिजनेस होगा उसने शायद, अगर आपके फादर या फिर कोई है बिजनेस में, तो ये आपने देखा होगा, बिजनेस तो लॉकडाउन में बंद ही थे, zero income, but expenses, fixed expenses like light bill, then rent, salaries and few other fixed expenses, overheads, वो तो चालू ही थे. तो भाई ऐसा रिस्क क्यों लेने का? What is the need? सैलरी आ रही है, खुश रहो. लॉकडाउन में भी सैलरी तो आई ही थी. एटलीस्ट हमारा जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो तो मेंटेन हो जाता है. तो क्यों करना है? नहीं करना है. हमारा ब्रेड एंड बटर तो ऑन हो रहा है. अंकिता हैज आंसर्ड, गुड, राइट आंसर, दैट अनलिमिटेड प्रॉफिट. अगर यही सोच धीरू भाई अंबानी ने भी अपने लिए रखी होती, तो क्या आज वो इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाते? एक टाइम पे वो भी येडन अमन में पेट्रोल पंप पे, वो पेट्रोल पंप टेंडर जो रहते ना, जो आपकी कार या फिर बाइक में पेट्रोल फिलअप कर देते, एक टाइम पे वो वहां पे जॉब कर रहे थे. फिर उसका अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, तो उसका जो पेट्रोल पंप का ओनर था उसने बोला मैनेजर बना देता हूं. बट नहीं, मुझे अपना खुद का पेट्रोल पंप स्टार्ट करना है, और उसने वो करके दिखाया. अनलिमिटेड प्रॉफिट while salary will be the limited. आज मेरी सैलरी 5,000 है, कल 6,000 होगी, मतलब 1 साल के बाद इंक्रीमेंट अगर आप कंसिडर करोगे तो कल 6,000 होगी, उसके नेक्स्ट ईयर 7,000, उसके नेक्स्ट ईयर 8,000. बट अगर मुझे ये घर का बंगलो चाहिए, बड़ा वाला मुझे बंगलो चाहिए मेरा खुद का, आज उसकी कॉस्टिंग है 2.5 से 3 करोड़ रुपया, तो मेरे लिए तो वो एक ड्रीम ही है, मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा. मैं मेरा ड्रीम अपने साथ ही लेके चला जाऊंगा. मुझे 3 करोड़ का बंगला लेना है,
आई वॉन्ट टू बाय अ होम वर्थ ₹3 करोड़। क्या सैलरी में ये चीज हो पाएगी? सॉरी टू से, आई एम ब्लंट, बट नहीं होगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? व्हाट यू शुड डू टू फुलफिल योर ड्रीम्स? किसी ने सच ही कहा है, किसी ने कहा है, किसने कहा मालूम नहीं, किसी ने कहा है, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। आपके ड्रीम्स तो बड़े ही होने चाहिए। अगर आपके ड्रीम्स छोटे हैं तो शायद आपकी सोच भी छोटी होगी। किसी ने ऐसा बोला कि अगर आपका ड्रीम सुनने के बाद अगर उस पर कोई हंसे नहीं ना, तो समझ लो कि आपका ड्रीम काफी छोटा है। आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। थिंक बिग, ड्रीम बिग, अचीव बिग, ये तभी हो पाएगा। सो सैलरी से आपका घर चल जाएगा। एक एग्जांपल, एक स्टोरी के साथ मैं यहाँ पे आपको बात बताऊंगा। एक बंदा था, अभी भी होगा शायद, मालूम नहीं है, पहले तो था एक बंदा जो साइकिल लेके घूमता था, कॉलेज के बाहर राउंड लगाता था, अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। शादी हो गई, कहीं पे जॉब कर रहा था, शादी हो गई। उसके बाद एक मोटरसाइकिल ली, टू व्हील जो आता है वो होंडा स्प्लेंडर कोई भी बोल दो आप, उसने एक टू व्हील जो है मोपेड स्कूटर जो है परचेज किया। वो आगे बैठता था, उसकी वाइफ पीछे बैठती थी, इन दोनों घूमने निकल जाते थे। संडे को ऑफ होता था, क्योंकि जॉब है तो जॉब में तो फिक्स है कि भाई आपको एक हॉलीडे मिलता है। बिजनेस में देयर इज नो हॉलीडे, हॉलीडे नहीं होता है। बट यस, वंस यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस इन अ बेटर वे, बाकी के सभी दिन जो है आपके लिए हॉलीडे है या फिर हैप्पी डे। तो ये बंदा जो था वो स्कूटर में गया, अपनी वाइफ को पीछे बिठाया। 2-3 साल के बाद एक बेबी आया, सभी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। बंदा आगे बैठा, वाइफ पीछे बैठी और उसकी गोदी में वो बच्चा बैठा। 3 साल के बाद एक और बेबी आ गया, वो बंदा आगे बैठा, जो पहला बच्चा था उसको टंकी पे बिठाया, दूसरा बच्चा जो था उसको गोदी में बिठाया वाइफ ने, और पीछे बैठ गई, किक लगाया, बाइक चलाया और घूमने निकल गई। 2-3 साल के बाद फिर से एक बेबी आ गया, तो जो न्यू बोर्न बेबी था 3rd नंबर वाला, उसको वाइफ ने पीछे बिठा के वो बैठ गई। फर्स्ट बच्चा जो था उसका वो बड़ा हो गया था, 7-8-9 साल का, तो उसको बीच में बिठाया, भाई साहब आगे बैठ गए, और जो छोटा बच्चा था मिडिल वाला उसको टंकी पे बिठाया, किक लगाया, घूमने चले गए। इतने सारे एडजस्टमेंट्स किए, बट एक कार लेने की वो सोच नहीं पाया। क्यों नहीं सोच पाया? लिमिटेड इनकम थी, सैलरी थी ना, मजबूरी थी। डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस इतने थे, बच्चों का मेंटेनेंस इतना था, घर का मेंटेनेंस इतना था, मजबूरी थी यार। एंड लेटर ऑन दे गेट एडिक्टेड टू एडजस्ट। एडजस्टमेंट का उसको एडिक्शन हो गया, एडजस्ट कर लेते। एक बाइक में 5 जने बैठ गए, एडजस्ट कर लिया। लाइफ में दोज हु आर एबल टू एडजस्ट दे नेवर अचीव एनी सक्सेस। जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। सो नेवर एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इंस्टेड ऑफ दैट, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो कि जो आपके लिए फेवरेबल हो। Entrepreneur is the one who start the business. Someone does need to start it so that others may get salary out of it. Yes, Ankita, you are right. The biggest benefit, not for yourself, but for the others too. अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हो। लोगों को आपके बिजनेस में कुछ न कुछ जॉब मिल जाएगी। एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ। मुकेश अंबानी का एक बार इंटरव्यू हो रहा था, पुरानी बात है, सॉरी, मुकेश अंबानी का एक बार इंटरव्यू हो रहा था, तो उस टाइम पे उसका बेटा जो था, आप सभी लोगों को मालूम है, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। तो एक जो टीवी एंकर थी उसने पूछा, आधा ही क्वेश्चन पूछा, बाकी का आधा क्वेश्चन मुकेश जी समझ गए कि सर आपका बेटा तो
एम आई ऑडिबल? के बीच में आवाज क्रैक हो रही है? कैन यू हियर मी क्लियरली क्लास? Yes, sir. Clearly audible. या थैंक यू। सो उसका जो क्वेश्चन था वो उसने पूछा कि आपका बेटा तो मेंटली रिटार्डेड है, देन व्हाई दिस मच giant industry and the heavy investments and all those things? तो उस टाइम पे मुकेश अंबानी ने सिंपली आंसर किया कि ये बिजनेस मैं अपने बेटे के लिए या तो मेरे लीगल हेयर जो है उसके लिए नहीं चला रहा, मैं ये बिजनेस मेरी जो रिलायंस फैमिली है उसके लिए चला रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया आंसर था। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज या तो रिलायंस ग्रुप की वजह से ऑलमोस्ट 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रही है, एंड वो काफ़ी मैटर करती है। जो यहाँ पे अंकिता ने पॉइंट बताया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिस्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। कई बार लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग एपिटी है, रिस्क लेने की उसको आदत है, या फिर उसके ब्लड में है, एड्रेनालिन में है कि भाई यस आई कैन टेक द रिस्क। बट रिस्क में भी कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। ऐसा रिस्क जो आपको सफलता दिलवाए, ऐसा रिस्क नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आप नीचे आ जाए। सो कैलकुलेटिव रिस्क। किसी एक बंदे ने काफी सही कहा है, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। आई एम नॉट हार्श, आई एम नॉट ब्लंट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग द ग्राउंड रियलिटी विथ यू। योर सैलरी is a bribe to forget your dreams. The salary which you are received is a bribe to forget your dreams. समझा आप लोग? इसका हिडन मोटिव जो है वो काफी टची है। So the subject is an entrepreneurship. The main aim, the main goal of the subject is to impart, or you can say is to boost up, is to pump up the students to start their own venture, अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करें। somehow बिजनेस करने के लिए आपको इनिशिएटिव के लिए जो भी इंस्पिरेशन चाहिए वो प्रोवाइड करना, जो भी और कुछ असिस्टेंस आपको चाहिए, जो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ आइडिया जो आपको रिक्वायर्ड है वो इस सब्जेक्ट में मैं आपको दूंगा। अभी आप लोग सोचोगे शायद कि सर आपने ये एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर तो झाड़ दिया, सैलरी के बारे में इतना बोल दिया, जॉब के बारे में इतना बोल दिया, तो आप भी तो जो भी कर रहे हो, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों के दिमाग में आया होगा, आया तो होगा, शायद पूछा नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। ये आया था एक क्वेश्चन आपके दिमाग में? फील फ्री, यू कैन कंसिडर मी एज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। क्या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि सर आप तो ये इतना सारा बता रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एंड जॉब का ऐसा बोल रहे हैं, तो फाइनली आप भी तो जॉब ही कर रहे हो, वाई सो? ओके, सो मैंने शायद बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आई डू हैव माई ओन रेस्टोरेंट नेम्ड S27 मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जो मेरा खुद का है और वो मैं बिजनेस चलाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक नया यूनिट जो है वो अभी नेक्स्ट मंथ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, नेम्ड SS ग्लोबल फूड्स। मेरा एक एक्सपोर्ट का भी यूनिट है नेम्ड SNP इंटरनेशनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
फिनो पेमेंट बैंक, जो महाराष्ट्र से, शायद उसने नाम सुना होगा, फिनो पेमेंट बैंक, हम उसके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द एंटायर सौराष्ट्र। आई एम इन टीचिंग, I am in teaching because it's my passion, it's my hobby. I would love to get updated from the students because you are the young generation, you are quite updated. सो किसी ने सही कहा कि अगर आप अपडेटेड लोगों के साथ या फिर यंग लोगों के साथ रहोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील यंग, नो डाउट आई एम यंग ओनली, बट देन ऑल्सो सो द थिंग्स दैट आई लर्नड since last 15 years through the various experiences of corporate life as well as business life, I would love to share those experiences with my students. जो चीज़ें मुझे मेरे यूजी और पीजी में नहीं मिली थी, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड इवन अभी जो हमारा पीएचडी चालू है, द थिंग्स दैट आई डिडंट गेट इन माय यूजी एंड पीजी, आई वांट टू गिव दोज थिंग्स, दोज noble experiences. I want to share those experiences with my students. So at least somehow I can help you to build up your better future. So my utmost priority will be business only, and I even personally recommend all of you to start your own business. भले ही छोटा बिजनेस हो, बिजनेस बिजनेस होता है। शायद सलमान खान का एक कुछ मूवी था रईस, यस, उसमें कुछ था, ऐसा कुछ डायलॉग था, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, एंड समथिंग लाइक दैट। बट यस, यू शुड स्टार्ट योर बिजनेस। अभी नहीं स्टार्ट करना है, उसके भी कुछ क्राइटेरिया है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, उससे पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एंड मैनी मोर थिंग, एंड मैनी मोर थिंग। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा सिलेबस जो है वो भी हमारे लिए मेन एस्पेक्ट रहेगा। नो डाउट वी कैन टॉक lots of about the current corporate world and few other aspects as far as the entrepreneurship is concerned. We can have lots of success stories, and same time we are going to discuss lots of about the failure story. सक्सेस स्टोरी तो सभी लोग पढ़ते हैं, उसकी मिसालें भी दी जाती है कि भाई ये बंदा सक्सेस हो गया, ये बंदा सक्सेस हो गया, इसका एम्पायर इतना बड़ा हो गया। बट फेलियर स्टोरी जो है वो भी काफ़ी मैटर करती है। सक्सेस स्टोरी में से नो डाउट आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, बट फेलियर स्टोरी में से आपको ये जानने को मिलेगा कि भाई बंदा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था and why he failed, so that the same mistakes should not repeated by you, and that matters a lot. It is the main, or you can say the very crucial aspect. So we are going to discuss both the things, success story as well as failure story, and the same questions will be there in your examination. सक्सेस बिजनेसमैन जो भी है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस होंगे, एंड जो फेल्योर है जैसे कि कोडाक, नोकिया, askme.com एंड फ्यू अदर्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अराउंड द ग्लोब क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है उसके बारे में भी हो सकते हैं, जो फेल्योर है उसके बारे में भी हो सकते हैं, दोनों के बारे में हो सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर द सिलेबस विथ यू। यू प्लीज टेक अ लुक, आप अपना थोड़ा सिलेबस जो है वो देख लीजिए। प्लीज बी ऑनलाइन।
Is it visible, class? Is it visible, the syllabus? No, sir. It may take some time because I have already shared it. Yeah, now it's visible. Okay, so Bachelor of Commerce, that is BCom Honors, Semester 6, course title Entrepreneurship, course code 04CH0606. Course credit will be 4, total full credit course है ये, and 48 sessions will be there, each session of 60 minutes. Now we do have certain course outcomes that we need to focus. Comprehend fundamental concept for starting the business, how you can start your business, that you are going to learn from this subject. Apprehend the concept of industrial environment and preparing the business plan, or you can say the basic plan. Industrial environment जो हमने strategic management में last semester में सीखा था, internal environment, external environment and so on. Then understand available sources for raising funds for startups, internal fund, debt versus equity, internal, external, आपको कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, venture capital, angel investors and few other things. तो ये सब हम discuss करेंगे. Then comprehend various challenges and possible solutions for starting a business unit. अगर आपको कोई business unit start करना है, तो उसमें कई सारी challenges जो है वो आ सकती है. N number of challenges. एंड सभी चैलेंजेस का अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है. एक सॉल्यूशन सभी जगह पे नहीं चलेगा, सभी जगह पे अलग अलग चैलेंजेस होगी, उसका अलग अलग सॉल्यूशन होगा, जो कि काफ़ी टफ रहेगा. सेम हमारे पास यहाँ पे 5 मॉड्यूल रहेंगे. आपके रूब्रिक्स में आपको बिजनेस प्लान रेडी करना है. जो आपका रूब्रिक्स रहेगा उसमें आपको अपना बिजनेस प्लान जो है वो रेडी करना है. मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट. सब चीज़ें जो है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ये हमारा यूनिट 1 है जो कि बेसिक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रोडक्शन, द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स 10 सेशंस. जिसमें 10 सेशंस हमें चाहिए. दैट इंक्लूड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमन एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिक्वायर्ड स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो अंकिता ने बताया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टैक्स पेमेंट. एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. एक सिक्के की दो बाजू है, एक साइड एडवांटेज रहेंगे और एक साइड डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे. वो आपके ऊपर डिपेंड है किसमें से आप ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो. इंट्रोडक्शन टू इंट्राप्रेन्योरशिप, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. द सेकंड मॉड्यूल दैट इज अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, दैट रिक्वायर्स 12 सेशंस, बट 10 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा. हम ज़्यादा सेशन जो है वो हमारा लास्ट मॉड्यूल जो है, जिसमें हम सक्सेस एंड फेलियर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा मेन फोकस जो है वो वहाँ पे रहेगा. So industry, large scale, small scale, tiny, ancillary, cottage. One challenges for the small scale industry is registration process for SME, that is small and medium enterprise. Definition and symptoms of industrial sickness. कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद, पैंडेमिक अभी भी चालू है, तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर ऑब्जर्व किया होगा कि कई सारी इंडस्ट्री जो है वो अभी सिक है या तो वीक है. सो हाउ टू बाउंस बैक एंड सजेस्टेड रेमेडीज फॉर सिक यूनिट्स. उसके लिए कुछ रेमेडीज, कुछ सॉल्यूशंस दैट वी कैन सजेस्ट. यहाँ पे एक बात मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताऊंगा कि जो भी बुक्स है हमारे पास वो पुरानी है. उसमें जो भी सजेशंस होंगे, जो भी इसके डेफिनेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वाइज, कि भाई इतने से इतना इन्वेस्टमेंट जहाँ पे किया होगा उसको लार्ज स्केल बोल सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट्स वो चेंज हो सकते हैं. बट डोंट वरी फॉर दैट, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन.
देन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शंस, जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में सीखा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, मर्जर एक्विजिशन है, जॉइंट वेंचर्स है, टेक ओवर्स है, और यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस इनटू द फॉरेन मार्केट्स। देन प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, एंड ये आपके रूब्रिक्स में भी रहेगा। इसके 20 मार्क्स रहेंगे रूब्रिक्स के लिए। आपको अपने कोई भी एक बिजनेस आइडिया जो आपके दिमाग में है उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके आपको पूरा बिजनेस प्लान बनाना है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रोजेक्ट आइडिया, कहाँ से आपको आइडिया मिला, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, मेथड्स टू जनरेट बिजनेस आइडियाज, फिजिबिलिटी स्टडी रहेगी वहाँ पे, इकोनॉमिक, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, मार्केटिंग, फिनांस, HR, R&D एंड सो ऑन। देन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस प्लान, जिसमें मेन 10 पॉइंट्स है। जिसमें मेन 10 पॉइंट्स है बिजनेस प्लान में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, जो मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, एंड इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। Then sources of finance for budding the entrepreneurs, debt versus equity, internal versus external, then options for borrowing funds, कहाँ कहाँ से आपको फंड मिल सकते हैं, various financial institutions supporting entrepreneurial activities like NSIC, sorry for the disturbance, it was network issues, but anyway, we'll keep up to this only.
and from next session, we'll start with the basics of entrepreneur. So, I hope you guys have enjoyed this session. Thank you so much for your kind cooperation. Thank you so much. Stay home, stay safe, take care. Thank you.